Today we are going to start the new topic and the alkanes and cycloalkanes. It is the third unit in our syllabus. So we know what is mean by hydrocarbons. Hydrocarbons are nothing but the compounds which are made up of carbons and hydrogens. Okay, that are called as hydrocarbons. Now we have categorized the hydrocarbons into two different categories. That is saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Now saturated hydrocarbons are those which have a single bond, which does not have any double bond in the compound. They are called as saturated hydrocarbons. And we have two types of saturated hydrocarbons, that is alkanes and cycloalkanes. Alkanes are non-chain compounds, non-ring compounds, and cycloalkanes are ring compounds. So then the second category is unsaturated compounds. Unsaturated compounds are those compounds having double bond in the carbon chain, which are having CC double bond. They are unsaturated hydrocarbons, and the examples of unsaturated hydrocarbons are alkenes, which have general formula CnH2n, then alkynes having triple bond, and aromatic compounds, which are ring compounds like benzene ring and many other compounds. Okay, we have these two categories. First of all, we begin with today um, saturated hydrocarbons. Okay, saturated hydrocarbons, that is alkanes and cycloalkanes, we are going to study in this chapter. So first begin with alkanes. These alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons. That is, the carbons having single bond. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एलिफेटिक का मतलब होता है नॉन चेन, ओपन चेन, मतलब जिसमें जो चेन कंपाउंड, जो रिंग कंपाउंड नहीं होता है. ठीक है, जो रिंग कंपाउंड नहीं होता है उसको एलिफेटिक बोलते हैं. जो रिंग कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड एज मे बी एरोमेटिक. एलिफेटिक मतलब नॉन रिंग कंपाउंड्स. तो एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मींस ओनली सिंगल बॉन्ड, no double bond is there, then that compound would be saturated. So such hydrocarbons are called as alkanes. They are obviously open chain compounds. They have general formula CnH2n plus 2, where N is the number of carbon atoms. Okay, and hydrogen is according to the number of carbon atoms. If there is one carbon, then H2n plus 2, that means 1 plus 2. We have 4 carbon atoms. If there is one, so that will be CH4. इस तरीके से हम उसको नाम देते हैं. और हाइड्रोकार्बन्स इज अकॉर्डिंग टू दिस number of carbons present in that. Okay, then this name ends with ANE. All the IUPAC name in the alkanes ends with this ANE. You can see this ANE in the compound. ANE. तो सारे जो compounds होते हैं, all the alkanes ends with ANE, and the prefix, that means the starting portion of this alkanes, is indicates the number of carbon. कौन सा number of carbon है, it indicates in this prefix. Okay, so they are also called as paraffins. Paraffins इसलिए उसको बोला जाता है क्योंकि they are very stable compounds. They does not undergo any chemical reaction easily. Easily कोई chemical reaction में नहीं part करते हैं. They are very stable since they are saturated. Okay. So let us start with the IUPAC name and nomenclature. So again, there are two categories of alkanes. First one is unbranched alkanes. That is, they have no branches. They are straight chains. And second one is branched alkane. That means they are having branches. So unbranched alkanes are named in such a way their name ends with ANE with prefix indicating
the name and number of carbon atoms. जो unbranched, that means जो single straight chain होता है, straight chain में क्या होता है, simple there is ANE, और जितना भी एक straight chain में total जो number of carbons होते हैं, that is the prefix. Okay. Then branched chain में क्या होता है, only the longest chain is considered. जो longest chain है that is considered, and उसका जो प्रीफिक्स होता है, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सपोज नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट जो चेन है उसमें सपोज 4 कार्बन है और एक कार्बन ब्रांच्ड है या 2 कार्बन ब्रांच्ड है, तो वी नेम दैट ब्रांच्ड कार्बन एज मे बी मिथिल इथिल वॉट एवर दिस ब्रांच इज. ओके, उससे हम नाम करते हैं, और जो मेन नाम नेम होता है that is the longest chain which we are going to see in the examples. Like suppose the first example is CH4. That means 1 number of carbon and 4 number of hydrogens. This is simply a methane. Again ANE, you can see it ends with ANE. All the compounds ends with ANE. आप सारे compounds में देखोगे तो लास्ट में ANE आता है. ANE है, इसका मतलब वो alkanes है. Okay, that means they are saturated hydrocarbons. First is methane. Then if there are 2 number of carbons, that is ethane. 3 number of carbons, then propane. 4 number of carbons is butane, pentane. Like butane means 4. Okay, और ANE means alkanes. Pentane मतलब 5. ANE मतलब alkane with 5 carbons. Hexane, hexa मतलब 6. तो hexane मतलब alkanes with 6 carbons. Heptane मतलब 7. So in this way these are named. अब हम देखते हैं branched. अब ये जैसे है, इसमें एक कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है, it contains a methyl group. Okay, so we will not consider this carbon in the prefix of the name. जो नाम है, जैसे इसमें टोटल 4 कार्बन है, तो हम इसको ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 4 कार्बन है, इसलिए हम उसको ब्यूटेन नहीं बोल सकते हैं. बट दिस इज ब्रांच्ड अल्केन. तो हम क्या बोलेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है. अगर हम ऐसे में देखेंगे तो इट्स नॉट लॉन्गेस्ट चेन. दिस इज ओनली चेन विद 2 कार्बन एंड दिस इज द चेन विद 3 कार्बन. तो हम ये लॉन्गेस्ट वाली चेन लेते हैं. लॉन्गेस्ट चेन में अगर हम देखेंगे तो there are 3 carbons, so we will name propane, that is 3 alkanes with 3 carbons, and at the second position there is a methyl group, so we will write 2 methyl propane. Then again we can see this is 5, so we must call it penta, but we will not call this penta. We will see the longest chain. अब अगर इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन है और ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, तो आप कहीं से भी नाम दोगे द नेम विल बी सेम. वॉट एवर कार्बन, आप इसको भी 1 कंसिडर कर सकते हो, इसको भी 1 कंसिडर कर सकते हो. यू कैन कंसिडर एनी चेन एज द लॉन्गेस्ट बिकॉज ऑल द चेन्स दोनों डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो 3 कार्बन आते हैं. ओके, सो यू कैन सी अब ये जो कार्बन है, this is 3 carbons, so we will call it as propane. Okay, and at the center carbon, that means at the second carbon there is 1 methyl and 2 methyl, so we will call this as 2,2 dimethyl propane. अब ये जो 2,2 होता है, ये होता है पोजीशन कि कौन सी पोजीशन पे अटैच है, और ये डाई होता है, that means 2 methyl groups are present. Okay, then there is 7, तो हम इसको हेप्टा बोल सकते थे अगर ये स्ट्रेट चेन होता. तो स्ट्रेट चेन में हम इसको हेप्टा कार्बन बोलते. बट नाउ इफ वी सी द स्ट्रक्चर, देयर आर ओनली 5 कार्बन्स इन द स्ट्रेट चेन एंड अदर 2 आर ब्रांच्ड वन. सो 5 है तो हम इसको पेंटा बोलेंगे. एंड 1 CH3 is on CH group second carbon, and other CH3 group, other methyl group is on you can see 4th. आप यहाँ से भी कंसिडर करेंगे तो सेकेंड एंड फोर्थ विल बी द सेम. ठीक है, तो 1 is on the second position and 1 is on the 4th position, so we will call it 2,4 dimethyl. Since there is 2 methyl group, we will call dimethyl pentane. Okay, so in this way we can
name these alkanes in the IUPAC system. So let us see some of the rules of naming. First, we have to select the longest chain of carbon atom. Which is the longest chain? Suppose in methyl 2-methyl propane, we can see this is the longest chain. So first of all, we have to consider which is the longest chain. So in branched alkane, अगर अनब्रांच्ड है तो कोई चेन का सवाल ही नहीं है, बिकॉज दैट वुड बी अ स्ट्रेट चेन. तो जितने नंबर ऑफ कार्बन उतना सीधा सीधा उसका नाम होगा. बट देयर एग्जिस्ट अ ट्विस्ट इन ब्रांच्ड अल्केन. अब ये जब ब्रांच्ड अल्केन आ जाता है, तो इन ब्रांच्ड अल्केन द कार्बन एटम व्हिच इज ब्रांच्ड इज लीस्ट नंबर्ड. ओके, जो जो ब्रांच है वो सबसे कम नंबर पे आना चाहिए. सपोज देयर इज कंपाउंड, सपोज ये एक 4 कार्बन्स का चेन है. ओके, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 कार्बन का चेन है. अब यहाँ पे ऑब्वियसली बाकी जगह से हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे हमारे पास एक CH4 ग्रुप है. तो आई विल कंसिडर द नेम फ्रॉम हियर. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. हम इसका नाम यहां से शुरू नहीं करेंगे, हम इसको नाम यहां से शुरू करेंगे जहां पे नियरेस्ट पे एक जो भी अटैचमेंट है वो नियरेस्ट कार्बन पे होना चाहिए. सो नियरेस्ट कार्बन इज द सेकेंड कार्बन. अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, तो इट विल नॉट वर्क. we will consider the name from the nearest carbon source. So least number उस पे आना चाहिए. If there are 2 or more different alkyl groups, then they are written in alphabetical order. Suppose अगर एक ही कार्बन पे, सपोज यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे एक मिथिल ग्रुप है और एक इथिल ग्रुप है, ठीक है, या एक प्रोपिल ग्रुप है, तो हम इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे. जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे. ओके, देन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्किल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम. अब जो सब्स्टिट्यूशन है उसका नाम कैसे लिखते हैं? ये जैसे सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन के बदले जो सब्स्टिट्यूटेड है उसका नाम लिखेंगे जो भी वो अल्किल ग्रुप है. जैसे ये CH4 अगर होता तो मिथिल मीथेन होता, बट हम अल्किल ग्रुप क्योंकि दिस इज CH3 not CH4, it is attached to someone and it is CH3, that's why we called it as alkyl, that is methyl group. ठीक है, तो यहाँ पे YL आ जाता है, जहाँ पे भी H3 आ जाता है या जो भी ग्रुप है तो ये अल्किल आ जाता है क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो चुका है. अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन कम हो चुका है तो ये अल्किल बन जाता है. तो दिस इज मिथिल YL. ठीक है, तो इसमें YL जुड़ जाता है. वैसे ही देयर इज 2 सब्स्टिट्यूशन इन दिस, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है तो दिस इज डाइमिथिल. अगेन दिस इज मिथिल not methane. Okay, so this can also be called as neopentane, but in general IUPAC name we called it as 2,2-dimethyl propane only. Okay, then let's come to alkyl group. Now the alkyl group, when one hydrogen atom of alkane is removed, the resulting is called as alkyl group. जैसे कि मैंने बताया था इसमें ये जो मिथिल है इसमें एक हाइड्रोजन इज removed, one hydrogen is removed out of this alkane. So if one hydrogen is removed from the alkane, it becomes alkyl group. Okay, that means ANE will becomes now YL. जो ANE हम लास्ट में लगाते हैं उसके बदले हम YL लगा देते हैं. Okay, so its general formula is 2CnH2n plus 1. प्लस 2 के बदले अब प्लस 1 आ गया क्योंकि 1 हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड नाउ. So alkyl groups 1 valency of carbon remains free and it represents at dash R. Dash इसलिए क्योंकि this is bonded with something. This dash represents a bond. Okay, suppose dash R है ना, तो ये जो R है ये एक H के साथ bonded है
तो ये अल्केन बन गया। ओके, अगर मैंने ये H निकाल दिया इसमें से तो ये अल्किल बन गया। ये बॉन्ड स्टिल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये अल्किल ऐसे ही नहीं रह सकता है। इट इज श्योरली बॉन्डेड विथ समथिंग, किसी के साथ ये बॉन्डेड है, इसलिए ये बॉन्ड दिखाता है। ये जो इंडिकेट करता है, जो ये जो लाइन इंडिकेट करती है, दिस इंडिकेट्स अ बॉन्ड, इट इज बॉन्डेड टू समथिंग। Okay, so this is alkane converts to alkyl group. Then suppose this is methane. Methane converts to methyl group. Ethane converts to ethyl group. Propane converts to propyl group. जैसे जैसे हम उसमें से हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन उसमें से निकाल देते हैं, ये बन जाता है अल्किल ग्रुप। मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरीके से। Okay, so again we can see there are types of carbon atoms in alkanes. Alkanes में जो carbon atoms होते हैं, we divide into different categories according to how many groups or how many other carbons it is attached to. वो कितने दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंग we can decide. Just wait a minute, beta. Okay, so it's according to number of carbon atoms. Like in the first case, we can see there is a primary carbon. Now, what is mean by primary carbon? If a carbon is attached to only one other carbon, that will called as a primary carbon. That is, it is attached with only one carbon atom. Then if the carbon is attached to two other carbon atoms, it will be called as secondary carbon. If the carbon is attached with three different carbons, it will be called as tertiary carbon. And if it is attached to four other carbons, that will be a quaternary carbon, and we indicates it as plus 1 degree, 2 degree, 3 degree, and 4 degree. So let us see in this example. This is a structure of a hydrocarbons. In this you can see this carbon. This carbon is attached with only one other carbon. So we will call it as a primary carbon. This carbon also attached with only one other carbon. This carbon also is attached with one carbon. This is also a primary and this is also a primary. So all these are primary carbons which are attached with only one other carbon in the compound. So these are primary carbons indicated as 1 degree. We can name the primary as degree 1. Now let us see secondary carbon. Which are the secondary carbon? Let us see this carbon. This carbon is attached with two different carbons, one from this side and other from this side. So we will call it as secondary carbon. Also this carbon, you can see this is also attached with two different carbons. So this is also a secondary carbon. Now this carbon, so these two carbons are secondary carbons indicated as 2 degree. Now let us see the example of tertiary carbon. This is the carbon which are attached with three different carbons. This is one bond, this is second bond, and this is third bond. So there are three carbons attached with this carbon. So we will call it as tertiary carbon, that is 3 degree carbon. Then there is this carbon. This is the central carbon attached with four different carbons. One at this side, one at this side, one at this side, and fourth one upper side. So this carbon is attached with four different carbons. So we will call it as quaternary carbon. So there are four categories we have seen, that is primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, and quaternary carbon. So let us see isomerism in alkanes. Now, in the previous chapter, we have studied about isomerism. What is meant by isomerism? Isomers are those compounds having same molecular formula but different structural arrangements. That is called as isomers. We have already seen the number of isomers, the category of isomers, or we can see the classification of isomers in the previous chapter. So let us see in alkanes,
we can see a chain isomerism. What is mean by chain isomerism? When when one compound is in chain form and one is straight chain and one is branched chain, then we can see it is a chain isomerism. So let us see the example of this butane. So in this butane, we can see there are four number of carbons: one, two, three, and four. In this compound also, there are four number of carbons: one, this is second, this is third, and this is fourth. But now we can see this N-butane is in straight chain. There is no branches in this. This is a straight chain compound, and in the second, this is a branched chain. That means there is straight three straight chain and one is branched. तो यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे एक ब्रांच है. तो we can see there are same number of hydrocarbons. That means same number of carbons and same number of hydrogens in all the two compounds. दोनों भी compounds में same number of carbons और same number of hydrogens है. That means अगर मैं इसका molecular formula देखती हूँ तो there is same molecular formula, but when I see the structure, they have different structure formula. Okay, so that's why they are called as chain isomers. Again, we can see the example of pentane. In the pentane, I can see this is a straight chain having 5 carbons. This is a chain with 4 carbons in a straight chain and one is branched one. That means total 5 carbons again, and this is also 5 carbons, but 3 in single chain and 2 are branched. So if I see the molecular formula, we have same molecular formula in all those compounds. But this is a straight chain, so I will call as N-pentane. N indicates the straight chain and iso indicate one branch. Okay, if it is single branch, it is iso, and if it is one carbon is double branched, then it will called as neopentane. Okay, neo means double branched. One carbon is doubly branched, then it is called as whatever the compound is. तो न्यू हम उसको नाम देते हैं. और अगर ये सिंगल ब्रांच है इसमें एक कार्बन पे, दैट मीन्स वी हैव टर्शरी कार्बन ओवर हियर. अगर ये टर्शरी कार्बन है तो हम इसको आइसो नाम देते हैं. अगर ये क्वाटरनरी कार्बन है तो हम इसको नियो नाम देते हैं. ओके, जैसे कि ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में सिर्फ एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ही पॉसिबल है. इसमें और कोई ब्रांच पॉसिबल नहीं है. इसमें नियो पॉसिबल नहीं है, बट पेंटेन में नियो पॉसिबल है. ओके, सो दिस इज हाउ जनरल नेम एग्जिस्ट. ये जो एन आइसो नियो है ये जनरल नेम है, नॉट आईयूपीएसी नेम. आईयूपीएसी नेम हम कैसे देंगे? इसको हम बोलेंगे सीधा सीधा पेंटेन. ओके, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एज पेंटेन. दिस इज कॉल्ड एज, अब इसको हम कैसे गिनना शुरू करेंगे? सेकेंड जो कंपाउंड है आइसोपेंटेन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. अब हमने यहां से क्यों शुरू किया? क्योंकि हमको ये जो ब्रांच्ड वाला है उसको लोएस्ट नंबर देना है, तो इसलिए हमने यहां से गिनना शुरू किया. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. नाउ दिस इज ब्यूटेन. ओके, दिस इज ब्यूटेन, तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन. बट सेकेंड ब्यूटेन पे क्या है? सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल ग्रुप अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथिल ब्यूटेन. जैसे यहाँ पे नाम आया पेंटेन, ठीक है, जो जनरल नाम आता है उसमें पेंटेन आ जाता है. बट हम जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो हम उसको सिंगल ब्रांच, जो स्ट्रेट ब्रांच होता है, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, उसका नाम ही लिखते हैं. तो आईयूपीएसी नेम में हम इसको 2 मिथिल ब्यूटेन बोलेंगे. और अगर हम इसको नियोपेंटेन को नाम देते हैं तो अगेन वी विल कॉल इट एज 1, 2 एंड 3. तो हम इसको नाम कैसे देंगे? 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन. ठीक है, तो ये होगा 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन. तो अब ये जो पेंटेन है ये प्रोपेन बन गया, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रेट चेन का नाम देते हैं, बाकी जो ब्रांच है उसको हम जो भी ब्रांच है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं. तो दिस इज जनरल नेम एंड दैट इज
IUPAC name. But in standard form we use IUPAC name. जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स या जहाँ पे भी हम आगे पढ़ेंगे तो हमको ज्यादातर IUPAC नेम ही हम लिखते हैं, क्योंकि हम इससे इंडिकेट नहीं कर सकते। अब ठीक है, ये सिर्फ पेंटेन है तो इसमें पॉसिबल नहीं है, बट अगर इससे बड़ी चेन होती, चेन इससे ज्यादा बड़ी कार्बन्स होती, तो हम कैसे देखते कि आइसोपेंटेन है तो ये कार्बन कौन सी पोजीशन पे है। ये कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। तो अगर ये बड़ी चेन है तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि ये आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो एक CH3 ग्रुप है ये कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम यूजुअली सिर्फ ब्यूटेन पेंटेन तक ही ये कॉमन नेम को यूज कर सकते हैं, उसके आगे हम कॉमन नेम को यूजुअली यूज नहीं करते, हम सिर्फ IUPAC नेम ही यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके ओके। So the number of isomers in alkanes increase with number of carbon atoms. As the number of carbon atoms increases, obviously the isomers will also increase. अगर सिर्फ मिथिल है तो मिथिल में तो कोई आइसोमर हो ही नहीं सकता, ब्यूटेन है तो सॉरी सेकेंड अगर कार्बन है, थर्ड कार्बन है तो उसमें कोई भी आइसोमर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 कार्बन है तो भी ऑब्वियसली ये सीधा स्ट्रेट चेन ही आएगा, उसमें कोई ब्रांच नहीं आएगा। जब बट फोर्थ कार्बन आ जाता है तो इट मे बी ब्रांच्ड। सो दिस इज ब्यूटेन। ब्यूटेन में 2 ब्रांचेस हो सकते हैं, 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। पेंटेन में 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। वी हैव ऑलरेडी सीन। हेक्सेन है तो 5, देन 9, देन डेकेन, दैट मीन्स अगर ये C10 है, C10 में हमारे पास इट्स कॉल्ड एज डेकेन. It could be 25 different isomers possible in this decane. Okay, so number of isomers increases as the number of chain, that is number of carbons in the chain increases. Is it clear? Is it clear or no? Okay, now अब ये अल्केन्स की तो बात हमने कर ली, अब ये अल्केन्स हमको मिलता कहाँ से? अब ये जो अल्केन्स है यूजुअली हमारे जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट ये जो अल्केन्स होता है स्पेशली अल्केन्स को हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से निकालते हैं। अब ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम क्या होता है? आपने तेल का कुआं सुना होगा, सुना है? कोल कहाँ से निकलता है? कोल कहाँ से निकलता है? कोयला कहाँ से निकलता है? कहाँ से कोयला निकालते हैं? माइंस से। माइंस क्या होती है? जमीन को खोदते हैं। ओके, जहाँ पे कोल का अमाउंट ज्यादा होता है वहां हम जमीन को खोदते हैं और जमीन के अंदर से कोल निकालते हैं। तो ये कहाँ से आता है कोल? कहाँ से आता है? जमीन के अंदर जो होता है ये पूरा हाइड्रोकार्बन्स की रेंज होती है। दैट मीन्स C1 टू ऑलमोस्ट C40 तक। दैट मीन्स मिथिल, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन जो भी है ये सारे C1। C1 मीन्स compound with 1 carbon. C2 means compound with 2 carbons, alkanes with 2 carbons. Then C3 means alkanes with 3 carbons. That is how we name it. क्योंकि हम ऐसे तो मिथिल, इथिल, प्रोपिल नाम दे सकते हैं, बट जब ये अप टू C40 आ जाता है तो ऑब्वियसली हम इसको C40 कार्बन ही बोलते हैं। इसको हम नाम के पीछे नहीं, इतने सारे नाम कौन याद करेगा कि कौन सा है ना? हम ऑब्वियसली 10 तक ज्यादातर याद करते हैं, 10 के ऊपर तो मैंने भी याद नहीं किया। तो C40 का नाम कौन याद करते बैठेगा? C11 का नाम कौन याद करेगा? तो हम डायरेक्टली इसको C और नंबर ऑफ कार्बन्स लिखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, C11 दैट मीन्स कार्बन, अल्केन विथ 11 नंबर ऑफ कार्बन्स। C18 मीन्स कार्बन विथ 18 नंबर ऑफ मतलब चेन विथ 18 नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इस तरीके से हम इस अल्केन्स को जनरली नाम देते हैं। तो ये जो पूरी सीरीज होती है ये पूरी की पूरी जमीन के अंदर से निकलती है, इन विच 1
C1 to C3 जो होता है वो गैसेस के फॉर्म में होता है। जैसे हम अंदर डिग करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, बहुत गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, जो पेट्रोलियम वगैरह हम जहाँ से निकालते हैं, जिसको आप यूजुअली तेल के कुएं वगैरह बोलते हैं, तो हम उसमें से बहुत अंदर उसको डिग करके सबसे पहले जो अपर सरफेस होता है, जो लिक्विड वहां पे होता है, जो पेट्रोलियम होता है, उसके अपर सरफेस पे जो गैस होता है उसको सक्शन से बाहर खींच लेते हैं। वो जो गैस होता है दैट इज C1 टू C3। अब ये जो C1 टू C3 है ये पूरे गैस होते हैं, दैट मीन्स इथिल मिथिल और जो प्रोपेन होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन जो रहता है ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो हम इसको सक्शन से ये गैस को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। और ये जो गैसेस होती है these are used for burning in our cylinder, जो गैस सिलेंडर होता है आपका CNG LPG जो होता है ना, LPG is used in your home purpose, जो डोमेस्टिक पर्पस है उसमें LPG होता है, जो आपकी गाड़ियां चलती है दैट इज CNG। सो ऑल दीज गैसेस आर दिस C1 टू C3, C1 टू C3 होता है ये, दैट इज नेचुरल गैसेस हम इसको बोलते हैं। ओके, अब ये जो C4 से स्टार्ट होता है, दे आर लिक्विड फॉर्म, दे आर इन लिक्विड फॉर्म, जिसको हम ये लिक्विड जो है पाइप्स के थ्रू जमीन के अंदर से निकलते हैं। अब ये जो लिक्विड होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल C4 से लेके तो ऑलमोस्ट आई थिंक C24 C25 तक ये पूरा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम गैस होता है। दैट मीन्स दिस इज अ मिक्सचर ऑफ C4 टू many C10 C18 C20, ये पूरा मिक्सचर होता है, दे आर लिक्विड। और इसके ऊपर के जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यूजुअली हम उसको कोल या फैट्स के फॉर्म में हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो पेट्रोलियम होता है ये पूरा मिक्सचर होता है C4 से लेके C40 तक, जिसको हम पूरा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको सेपरेट करते हैं, जिसमें से C7 C8 जो होता है वो आपके पेट्रोलियम होते हैं, जो आप पेट्रोल और डीजल गाड़ी में हम चलाते हैं ना, वो होता है ये C7 से लेके C8 तक। और बाकी के जो होते हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए हमको अल्केन्स यूज होते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं, जो लास्ट में सॉलिड्स बच जाते हैं, दे आर यूज्ड फॉर वैक्स, जो वैक्स होता है जिससे आपकी कैंडल्स बनती है, दे आर द रिमेन्स द जो भी पेट्रोलियम सेपरेट करने के बाद जो बच जाता है, दैट मीन्स हायर जो हाइड्रोकार्बन्स होता है, जो सॉलिड होता है, दे आर इन वैक्स फॉर्म। और जो फिर बाद में जो जला हुआ होता है वो आपका जो डामर होता है, जिससे आप रोड, डामर का रोड बनाते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेस्ट हाइड्रोकार्बन। जो हायर हाइड्रोकार्बन्स जो बच जाता है पेट्रोलियम को सेपरेट करने के बाद, जब हम उसमें से पेट्रोल और डीजल वगैरह को अलग कर लेते हैं, तो बाद में जो बच जाता है वो पेट्रोलियम जेली होता है, वैक्स होता है, डामर होता है, जिससे आप रोड बनाते हैं। तो दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैंड, जमीन के अंदर से जब हम गड्ढा खोद के इसको निकालते हैं, वही होता है कोल। कोल इज ऑल्सो द हायर हाइड्रोकार्बन्स जो हम एक्सट्रैक्ट करके सॉलिड फॉर्म में बाहर निकालते हैं। So they are extracted from natural gases and petroleums. Say so they both are very abundantly found in underground. But हम continuously क्या कर रहे हैं, ये underground में आता कहाँ से है? जो भी animal remains होता है, जो plant remains होता है, ये जब जमीन के अंदर जाते जाता है, हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट्स बॉडी है, जो भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनका जो बॉडी होता है ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है। तो जब ये आफ्टर डेथ जो डिकम्पोज होते जाता है, तो डिकम्पोज होने के बाद आफ्टर अ लॉन्ग ईयर्स, इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इट कन्वर्ट्स इनटू अल्केन्स, ये अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस स्पीड से हम ये कन्वर्ट होता है उससे फास्ट अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, तो हम बोलते हैं ना कि कुछ साल बाद हमारे ये जो पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, कोल खत्म हो जाएगा, तो जो भी एनर्जी सोर्सेस हम निकाल रहे हैं वो कुछ साल में खत्म हो जाएगा। तो खत्म क्यों होगा? खत्म बनते तो जा रहा है, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जो भी डेथ रिमेन्स होते हैं दे गोज इनटू दैट underground and it converts into that hydrocarbons. So
the conversion process is slow but we are extracting it very fast in a very fast speed. हम उसको बहुत ज्यादा extract कर रहे हैं, उतनी स्पीड में वो बन नहीं रहा, इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ साल में that would be at the end. Okay, so apart from that, let's come to the topic. So these are नेचुरल गैसेस, जिसको मैंने बताया कि जो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम होता है जो लिक्विड होता है, उसके ऊपर जो गैस भरी होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें 80% जो होता है वो मीथेन होता है, 10% इथेन होता है और 10% हायर अल्केन्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो हायर अल्केन्स होते हैं विच आर सॉलिड एट प्रेजेंट, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं हायर अल्केन्स एंड डिसॉल्व्ड स्टेट होते हैं, मतलब ये डिसॉल्व्ड स्टेट में होते हैं. पेट्रोलियम इज अ चीफ सोर्स ऑफ अल्केन्स. पेट्रोलियम जो है दिस इज अ चीफ सोर्स ऑफ अल्केन. इट कंटेन्स अप टू 40 कार्बन्स, दैट मीन्स C1 to C40. दैट मीन्स C1, C2, C3 is in gaseous form and others are in liquid and solid form. तो ये जो अल्केन्स होता है इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं.